جی السلام علیکم۔ کووڈ 19 کے بعد دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، تیزی سے ترقی کر گئی ہے، بلکہ چینج بھی ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چونکہ جاب اپرچونیٹیز ڈرائی ہونا شروع ہو گئی پوری دنیا میں، اور ملازمتیں نہیں مل رہی۔ جو آلریڈی ملازم تھے کسی آرگنائزیشنز میں، ان میں سے بہت سارے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے ٹو میک اینڈز میٹ، انہوں نے فری لانسنگ کی طرف رجوع کیا۔ انٹرنیٹ پہ بہت ساری بات پھیل گئی پوری دنیا میں۔ ابھی میں پہلے دنیا کی بات کروں، پھر پاکستان کے اسپیس کی بات کروں گا۔ سو دیئر فور ہیوج پاپولیرٹی فار دا ٹرم فری لانسنگ آل اوور دا ورلڈ۔ اچھا، جب پاپولیرٹی بڑھی تو ظاہر ہے یہ بات پاکستان میں بھی آئی، پوری دنیا نے جب ایکسپیرینس کیا۔ ہماری پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اس سال $2 بلین جو ہیں وہ ایکسیڈ کر گئی، which is actually far better than 1.44 بلین سیم ٹائم لاسٹ فسکل ایئر 19 اور 20 کے۔ تو یہ تقریباً 50-60% کی جو ایکسپونینشلی گروتھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیز نے اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھائیں، فری لانسرز ایکویشن میں بہت زیادہ آئے۔ ڈیجی اسکلز الون ہیز پروڈیوسڈ $200 ملین تھرو فری لانس ٹریننگ، اور پھر ظاہر ہے پرائیویٹ ٹریننگ، اور فری لانسرز ایسے بھی ہوں گے جو اپنی انکم جو ہے وہ ریویل نہیں کرتے۔ سو اٹس اے sweeter picture, it's a well depicted growth for the next 2 years at least as I see it۔ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں 2021 کی اور 2022 کی۔ اب جب فری لانسنگ پاپولر ہو رہی ہے، مشہور ہو رہی ہے، بہت سارے نئے پلیئرز اس اسکل سیٹس کو استعمال کر کے، رینڈر کر کے پیسے کمانا شروع کر رہے ہیں آن ڈفرنٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز، تو ظاہر ہے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، اور کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ڈسپوائنٹمنٹس بھی بڑھ رہی ہیں۔ اب ڈسپوائنٹمنٹ از اے پارٹ آف دا گیم۔ ڈسپوائنٹمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے فری لانسنگ سے ایکویشنز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے جو ایلیمنٹس ہیں جو لیڈ کرتے ہیں فری لانسنگ کی طرف، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 اسکول ہے، نمبر 2 گورنمنٹ ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے جو ملکی معاشی حالات ہیں وہ ہیں۔ اب جب ہم پہلے اسکول کی بات کرتے ہیں، اسکول آپ کو ظاہر ہے ایک سرٹن سمت میں ٹرین کر رہا ہے، وہ آپ کو منی میکنگ اپرچونیٹیز، فری لانسنگ کا تو لفظ ہی نہیں یوز ہو رہا اسکول سسٹم میں۔ پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو یہ ظاہر ہے جب بچہ آل آف اے سڈن اس فیلڈ سے متعارف ہوتا ہے، اور وہ اگر پیسے کما لے تو پھر وہ اسی سمت میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایٹ سرٹن پوائنٹ وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار میں دیوار کے ساتھ لگ گیا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ سرکار، گورنمنٹ۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ حالانکہ سہولتیں بھی دے رہی ہے، فیسلٹیز بھی دے رہی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ ایک ایسا سازگار ماحول کریٹ کرے، چاہے وہ ٹریننگز کا ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ہو۔ ٹریننگز کا تو پارٹ پلے کر رہی ہے، انفراسٹرکچر بلوچستان، گلگت بلتستان، فار الانگ ایریاز، ریموٹ ایریاز، وہاں پہ 4G تو درکنار، 3G بھی صحیح نہیں چلتا، 2G جو ہے وہ مٹھا مڑا ہو کے چلتا ہے۔ تو وہاں کے جو پلیئرز ہیں وہ ایکویشن میں نہیں فال ہوتے، اس وجہ سے آپ گروتھ نہیں دیکھ رہے زیادہ۔ اور میرے نزدیک گروتھ 2 بلین سے آرام سے 6 بلین ہو سکتی ہے۔ تیسری بات ہے جناب ملکی جو معاشی حالات ہیں، جابز نہیں ہیں، تو جابز اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی کووڈ 19 کے بعد، اور ویسے بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ خاص نہیں ہو رہی، اور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کی لوکل مینوفیکچرنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر لوکل مینوفیکچرنگ ہوگی تو جابز جو ہیں وہ آف شور نہیں جائیں گی، آؤٹ سورس نہیں ہوں گی، اور جابز جو ہیں وہ ود ان دا کنٹری ہی پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایونچولی ایکو سسٹم کریٹ ہوگا، ایوری باڈی لینڈز منی ٹو ون انادر۔ بہرحال اب ہم ریپرکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ نمبر آف پلیئرز بہت زیادہ ہو گئے تو ان پلیئرز کو سکسیس نہیں ملتی۔ جن کو سکسیس ملتی ہے پہلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سکسیس ملتی ہے صرف ان لوگوں کو جو 3 چیزوں میں تگڑے ہیں۔ ایک، کمیونیکیشن سکلز۔ I'm sorry, I keep on talking about this again and again and nobody listens to it۔ جو سن رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ از یور بزنس ڈیولپمنٹ سکلز، یہ دونوں سافٹ سکلز ہیں۔ اور تیسری آپ کی ٹیک سکل ہے، جو بھی آپ سکل سیکھ کے رینڈر کرتے ہو آن مارکیٹ پلیسز، چاہے وہ آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سو اینڈ سو فورتھ، کچھ بھی ہے۔ اب اگر آپ کمیونیکیشن سکل کی بات کرتے ہو تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ بات ایسی ہونی چاہیے جو اگلے کے دل میں اتر جائے، نہ کہ اگلے کے دل سے اتر جائے۔ کمیونیکیشن سکل اسٹینڈز ایٹ فور فرنٹ آف اینی پروفیشنل ریلیشن شپ۔ اگر
पर्सनल भी फॉर दैट मैटर। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आता, अगर आप अपनी बात अगले को समझा नहीं पाते, तो वो क्यों आपकी बात से मुतासर होगा? आप एक सर्विसेज देना चाहते हैं, एक स्किल में महारत हासिल कर बैठे हैं, लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं आता, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, आपको बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि दूसरी बात है, सॉफ्ट स्किल है, अगले को कन्विंस नहीं करना आता कि वाई दे शुड डू बिजनेस विद यू, यू आर एट लॉस। फिर क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लोग कहते हैं हवाई रोजी है, लोग कहते हैं जी ये चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, एक ऐसा रॉकेट है जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब मेरे नज़दीक आपको दो चीज़ें, इन तीन चीज़ों के बाद, ये जो तीन स्किल्स मैंने बताई हैं, कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट और टेक्निकल स्किल, इनको सीखने के बाद 3 महीने अपने आप को देने चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक आपको दो चीज़ें मुमताज़ करती हैं एक एवरेज फ्रीलांसर से, एक आपकी टाइम कमिटमेंट और दूसरा आपका पेशेंस, सब्र। अब अगर आपकी टाइम कमिटमेंट है, फ्रीलांसिंग ऐसा थोड़ी है कि 1-2 दिन काम किया, 4 दिन दुख में गुजार दिए कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ओ भाई, देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रेगुलरली, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंट होके आपको इस जॉब पे अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही समझ लें कि आप मुलाजमत कर रहे हैं किसी की, 5 घंटे बैठिए, प्रोजेक्ट सर्च कीजिए। अब 1 दिन 2 दिन टाइम सर्व करने के बाद अगर आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये बिल्कुल हवाई रोजी है, तो एड्डा तुसी ज्ञानबाज ना, मतलब आपने फैसले ही सुना दिए। अच्छा, दूसरी बात पेशेंस है, सब्र है। टाइम कमिटमेंट, जब आप दिन के 5-6 घंटे लगा रहे हो प्रोजेक्ट्स ढूंढने में, अपने आप पे टाइम स्पेंड करें मुख्तलिफ औकात में। अब तो अपवर्क पे ऐसा भी नहीं है कि सारी रात ही काम करोगे तो काम मिलेगा। मिडल ईस्ट की जॉब, ऑस्ट्रेलिया की जॉब, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, विच मीन्स कि उनका और हमारे टाइम में 19-20 का फ़र्क है। जो फजर के बाद काम स्टार्ट करता है उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जॉब्स मिलती हैं, जो दिन के बाद काम करता है उसको मिडल ईस्ट, इंग्लैंड और इसके यूरोप के गिरदो नवा की जॉब्स मिलती हैं। शाम पढ़ने की देर है तो बाकी यूरोपियन ममालिक आ जाते हैं, और रात तो अमेरिका और कनाडा और वेस्ट इंडीज़ जो कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको भी हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने मुस्तकिल मजाजी दिखानी है, आपने कंसिस्टेंट रह के काम करना है। और दूसरा सब्र पाई, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ता तब्दील होने के लिए भी 7 दिन का प्रोसेस मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो तुसी रातों रात की एक्सपेक्ट करोगे तो की मिलना। सो प्लीज़ बी पेशेंट। नाउ इफ़ आई फ्लिप द कॉइन, बाय द वे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखो तो एक बड़ा तफसीलन और जामे मजमून मैंने इसी टॉपिक पे जो मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको शायद और मालूमात मिल जाएंगी, क्योंकि उस पर लिंक्स वगैरह भी हैं। अब आपको अगर फ्लिप करना है सारी इक्वेशन को, तो प्लीज़ रादर देन यू सर्चिंग फॉर द क्लाइंट्स ऑन डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के, मैं जाके ढूंढूं यार मुझे अपवर्क पे काम मिले, मुझे फायर पे मिले, मुझे guru.com पे मिले, मैंने सारी उम्र यही काम किया है। 2 साल पहले मुझे अकल आ गई, मैंने इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने का मतलब है कि डायरेक्ट क्लाइंटल लेके आए। अब आप डायरेक्ट क्लाइंटल कैसे लेके आओगे? जब आपका दर होगा, दर के खटखटाएगा कोई तो तभी आपके घर के अंदर आएगा ना। सो इसका मतलब यह है कि आपको अपने घर की तामीर करनी है, और डिजिटल स्पेस में आपका घर आपकी वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट की ऑफर अभी भी अवेल करना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जस्ट परचेज 4 years hosting and my team will build a free portfolio blog website for you। ये मैं कई दफ़ा ऑफर दे चुका हूँ। होस्टिंग अगर मैं पाकिस्तान लाना चाहता हूँ, पर अगर जब आपने अपना घर की तामीर कर ली, अपनी वेबसाइट की तामीर कर ली, तो फिर आपने गूगल पे प्रेजेंस करनी है, जहाँ पे अगर आपको SEO आती है सीख लें, नहीं तो आउटसोर्स कर लें इस काम को, ताकि एक ही दफ़ा महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। खुद ट्राई करोगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, पता नहीं कामयाब होगे नहीं होगे, बेहतर किसी एक्सपर्ट को करने दो। सो फॉर योर फ्रीलांस स्किल्स, कीवर्ड्स, मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपके फ्रीलांस कीवर्ड्स क्या हैं? लोगो डिजाइनर, ब्रोशर डिजाइनर, UX UI डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, मोबाइल ऐप डिजाइनर, सोशल मीडिया डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सो एंड सो फोर्थ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। इस कीवर्ड्स के सेट को आप गूगल एड्स पे एडवर्टाइज करें ताकि डायरेक्ट ट्रैफिक आए लोकल इकोसिस्टम पे। को पाकिस्तान में सर्च कर रहा हो वेबसाइट डिजाइनर, तो आप अगर वेबसाइट डिजाइनर हैं तो वो नजर आ जाए। फिर सिटी वाइज लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, मुल्तान, पूरे पाकिस्तान को कवर कीजिए ताकि यहाँ का लोकल बायर आपको मिल जाए। वर्क चेस क्यों पॉपुलर हुआ?
वर्कचेस इसलिए पॉपुलर हो गया जी कि लोकल इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। अभी तक तो बाहर के इक्का दुक्का क्लाइंट आया, लोकल इकोसिस्टम, दिन की 10-15 जॉब्स, आई एम नॉट मैं इसके बारे में फ्लैक्स नहीं करूंगा। आप जाएं और वर्कचेस को देखें और हर जॉब पे देखें लोग कैसे अप्लाई करें और देखें कितनी अवार्ड होती हैं, आपको साफ समझ लग जाएगी। इकोसिस्टम बन जाए तो आपने क्लाइंट को अपने पास लेके आना है। खुद क्लाइंट के पास जाएंगे तो आप एक कंपटीशन की रेस में जा रहे हैं, पर जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यू डिलीजेंस कर चुका है, वो एन मुमकिन है कि वो इंप्रेस हो चुका है आपकी वेबसाइट को देख के, आपकी वेबसाइट की यूएक्स यूआई, उसका कंटेंट, आपके बारे में जानकारी, और उसके बाद वो कहता है अच्छा चलो आओ अब प्राइस पे बात करो। याद रखना फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जो कंपटीशन होता है वो सैचुरेटेड होता है, तो प्राइस भी ड्रिल डाउन होती है, कट हो जाती है, स्लैश्ड हो जाती है। मैं जब 1999-2000 में काम करता होता था, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, तो मैंने वेब डेटाबेसेस जो हैं वो $1,000-$1,500 के बेचे हैं। पर आज आप जब वर्डप्रेस की साइट बनाते हो तो वो $100 में पूरी बनती है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इससे भी बड़ी होती है, जाहिर है हजारों लाखों तक जाती है, लेकिन एवरेज जो प्राइस है वो स्लैश डाउन हो चुकी है, वो लिटरली कट टू मिनिमम साइज हो गई है। अब अगर क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आया थ्रू गूगल सर्च इंजन, थ्रू एनी सोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपके दर पे खटखटा रहा है, सर आप अपनी मर्जी की प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन नहीं है जो कि एवरेज प्राइस दे रहा है उसको। 10 लोगों ने $100 दिया, तो वो एक्यूमुलेट प्राइस बन गई लेट से $80, 100, 110, 80, 400, ये एक्यूमुलेट प्राइस पड़ गई। वेबसाइट के केस में आप अकलौते ही हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ फोकस करें। मेरे नज़दीक आज के दौर में हर एक का ब्लॉग होना चाहिए और हर एक के ब्लॉग के साथ यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। इस कंटेंट की व्यूअरशिप देख लीजिएगा जो लिंक में पड़ा हुआ है। अभी तो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं ना, ये लग जा रही है यूट्यूब पे, ये लग जा रही है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो कंटेंट का लिंक है उसके व्यूज देख लो। सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू स्पॉन्सरशिप, मेरे ब्लॉग पे भी जा रहा होगा और मेरे यूट्यूब पे जा रहा होगा, तो अच्छा है, बेहतर तरीका है। अब आप अवेयरनेस भी रेज करें तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं किसी बारे में, काम के बारे में, किसी स्किल के बारे में, तो आप उससे रिलेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट्स बेचिए। अब चूंकि मेरा फोटे लेट्स से आईटी है, तो मैं आपको वेब होस्टिंग बेच रहा हूं एज एन एफिलिएट, उसमें से भी मैं एक चंक निकाल रहा हूं। सो यू शुड ऑल्सो थिंक फ्यूचर, थिंक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड थिंक फील्ड्स दैट आर रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, जिसके आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। एक क्लू देता हूं मिसाल के तौर पे, अब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो सर आप सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस बेचिए, प्रीमियम सॉल्यूशंस भी बेच सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए। अब ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी प्रोडक्ट, जैसे मैंने वर्कचेस क्रिएट किया, कल इस पे पेमेंट इंटीग्रेशन होगी, उसमें से हम एक परसेंटेज लेंगे, मैं और मेरा पार्टनर। सो आप अपनी स्किल से रिलेटेड, अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जिसके आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करें। प्रोडक्ट इज वन बेस्ट वे ऑफ मेकिंग कंटिन्यूअस मनी। इवेंचुअली आप क्लाइंट के पास नहीं जा रहे, बाय डूइंग डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट आपके पास आ रहा है, ऑटोमेटेड मनी है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिट ऑन योर डेस्क 24/7। फ्रीलांसिंग डिजिटल मजदूरी है। सो समराइज करता हूं बात को, पूरी दुनिया फायदा उठा रही है अगर $200 मिलियन सिर्फ डिजी स्किल्स के, क्योंकि ये स्टैट्स मेरे सामने आए हैं। अगर वो लोग कमा रहे हैं तो पूरी दुनिया से कितना कमा रहे होंगे। पाकिस्तान में यूट्यूब और बाकी फोरम से, ई रोजगार हो गया, बाकी जगहों से कितना कमा रहे होंगे। फिर ये प्राइवेट कंपनीज भी हैं, मिसाल के तौर पे अमेजोन की जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, इनके प्लेटफॉर्म से कितनी लोगों को सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिली। सो इकोसिस्टम बन रहा है, लोग कमा रहे हैं। आप में से जो लेफ्ट आउट है ना, जो लेफ्ट बिहाइंड है, वो इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि वो लैग कर रहा है कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल। वो लैग कर रहा है अपनी टेक स्किल के अंदर, उसमें उसकी कमांड नहीं है। वो लैग कर रहा है जनाब पेशेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी, बिकॉज ये एक रेगुलर काम है, इसको समझिए जॉब है जो आपको दिन रात करनी है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, हफ्ता भी तभी तब्दील होता है जब 7 दिन मुकम्मल होते हैं। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी पेशेंट, and of course then think multiple sources of income alongside freelancing, because freelancing is not long lasting. एक वक्त आता है आप बर्न आउट हो जाते हो, आप ड्राई हो जाते हो, तो आप 24 घंटे काम की तलाश में तो नहीं बैठे रह सकते ना। यू नीड टू हैव एन ऑटोमेटेड सोर्सेज ऑफ इनकम। दैट इज वेयर I would recommend going for affiliate products. I would recommend creating your own product
affiliate product, hostinger, own product, WorkChest, freelance hero Pakistan, being guru, my YouTube. So आपकी जब अपनी चीज़ें हो जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको मुख्तलिफ मोड से, मुख्तलिफ नुक्तों से पैसे आना शुरू हो जाएंगे. थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करके आप बेहतर हो जाएंगे और आप ग्रो करेंगे. मेरे नज़दीक इवेंचुअली पाकिस्तान में ये तो आईटी इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इक्विपमेंट्स की बात होनी चाहिए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिछ जाए कि पाकिस्तान में उन इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट की माकूल फैसिलिटी नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, वो प्लेयर्स भी इक्वेशन में आ जाएं. वो भी जब काम करेंगे तो इकोसिस्टम बढ़ जाएगा, चाहे वो फ्रीलांसिंग का स्पेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स का स्पेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, इवेंचुअली इकोसिस्टम बढ़ जाएगा. सो गुजारिश ये है कि अपनी खामियों पे उनको नज़रअंदाज ना करें, उन पे नज़र षानी करें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें. थोड़ा वक्त लगेगा. आप जो कि फील करता है कि ही इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ये हवाई रोज़ी है. यकीन जानिए हवाई रोज़ी नहीं है. अगर आप मेहनत करें तो आप उस पैसे को फिर री इन्वेस्ट करते हैं इनटू मल्टीपल थिंग्स, एफिलिएट, प्रोडक्ट, अपना सिस्टम, यूट्यूब, ब्लॉग, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका मनी चेन चलना शुरू हो जाता है. ये ऐसी बातें हैं जो बाहर के वेबिनार्स में हम लोग बड़ी कॉस्टली बताते हैं, लेकिन अपने लोगों को बिल्कुल मुफ्त में और एक एक चीज़ करके सिखा दी है. मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सर्च करो हिशाम सर्वर, प्लेलिस्ट देखो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे कॉपी राइटिंग हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो, एक एक चीज़ तो खोल के बता दी, सिखा दी, कुछ भी नहीं होल्ड बैक किया. नाउ यू हैव टू लर्न, अप्लाई इट एंड बिकम सक्सेसफुल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बट हाँ, डिजिटल स्पेस में सर्विसेज हर एक को देनी चाहिए, चाहे आप मर्द हैं, खातून हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, टीचर हैं, स्टे एट होम मदर हैं. डिजिटल स्पेस यूटिलाइज करें और इससे पैसे कमाएं. बहुत बहुत शुक्रिया.